لوگوں کی نظر میں اگر شاید عام بات ہوگی، لیکن کلام کی نظر میں یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا اپنے نبیوں کو پہلے رویا دیتا تھا، اس کے بعد کلام دیتا۔ اے یرمیہ تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا ایک بادام کی شاخ دیکھی۔ اس نے کہا تو نے خوب دیکھا۔ پھر اب کیا دیکھا؟ دیکھ دیکھی تو نے خوب دیکھا، کیونکہ میں اپنا کلام پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ اب جو خدا نے مجھے رویا دی ہے وہ یہ دی ہے کہ اینٹیں، جیسے اینٹیں نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ اینٹیں ایسی ہیں جن کے اوپر ردہ نہیں لگا، جن کے اوپر سیمنٹ نہیں ہے۔ یعنی کہ جو مسالہ بنایا جاتا ہے، پہلے مسالہ لگاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ردہ لگایا جاتا ہے، لیکن یہ جو اینٹیں دکھائی گئی ہیں اس کے اوپر ردہ نہیں لگایا گیا، یعنی کہ سیمنٹ کے بغیر یہ اینٹیں تیار پڑی ہیں۔ یہ ایسی رو ہے، اور یہ اس کا آپ کو میں باقاعدہ پروف کے ساتھ بتاؤں گا کہ وہ کون لوگ ہیں اور کیسے لوگ۔ ہاللیلویا۔ اور جو لوگ نبیوں اور رسولوں کی نیب پر تعمیر نہیں ہوئے وہ ایسے۔ ہاللیلویا۔ وہ لوگ ایسے، یہ خدا نے مجھے کلام کے ذریعے سمجھائی ہے کہ جو نبیوں اور رسولوں کی نیب پر تعمیر نہیں ہے وہ بغیر سیمنٹ کے اوپر چڑھ رہے ہیں، بغیر سیمنٹ کے اوپر وہ نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ اصل میں نبیوں اور رسولوں کی نیب پر تعمیر ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ کے خوبصورت کلام کے لیے پہلے تالی ہو جائے گی۔ یہ ہے خدا کا کلام، جو اسے قبول کرے گا ضرور برکت پائے گا۔ اب نبیوں اور رسولوں کی نیب جو ہے وہ کہاں ہے، پہلے ہم کلام میں سے دیکھیں گے۔ اور سب میری درخواست یہ ہے کہ اپنے کان کھول کر، ذہن حاضر کر کے اور دل سے سمجھنا، تاکہ اس بات سے آپ غافل نہ رہیں، کیونکہ جب خدا کلام سناتا ہے یا دکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، تو وہ آپ لوگوں کے لیے، پہلے میرے لیے ہوتا ہے پھر آپ کے لیے ہوتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر آپ اس کلام سے غافل رہیں گے تو پھر آپ بغیر ردے کے، بغیر سیمنٹ کے چڑھتے جائیں گے، لیکن پھر آپ کو خطرہ ہوگا۔ اس بات کو یاد رکھیں۔ پہلا حوالہ ہم پڑھیں گے، اور جو اچھی تلاوت کر سکتے ہیں بلند آواز سے حوالے میں بتاتا جاؤں گا اور وہ پڑھنا شروع کریں۔ بہن شازیہ، آپ نے پہلا متی کی انجیل، اس کا 16 باب اور اس کی 16 آیت سے شروع کریں۔ خداوند کے کلام میں یہ مضمون ہے، شمعون پطرس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بر-یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ آمین۔ اب یہ بات خون اور گوشت نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے اس نے تجھ پر ظاہر کی۔ وہ بات کیا تھی کہ لوگ ابن آدم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بات یہ تھی، تو رسول نے جواب دیا، بعض ایلیا، بعض پرانے نبیوں میں سے، مگر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تو جواب کیا آیا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ بیت اس پر خون اور گوشت نے نہیں، یعنی انسان نے نہیں بلکہ خدا نے جو آسمان پر ہے اس نے اس پر ظاہر کیا۔ ہاللیلویا۔ اب جب اس پر ظاہر کیا تو وعدہ کیا ہوا کہ میں تجھ پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ تو پتھر ہے اور اس پتھر پر میں اپنی کلیسیا بناؤں گا، یعنی اس مکاشفہ پر جو تو نے بیت حاصل کر لیا ہے، اس پتھر پر، اس مکاشفہ پر میں اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ ہاللیلویا۔ یہ ہے متی کی انجیل 16 باب اور 16 آیت میں ہم نے یہاں تلاوت کی ہے۔ اب 28 باب اور 19 اور 20 آیت میں متی۔ بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ آمین۔ اب جب
खुदा के कलाम में खुदावंद यीशु मसीह ने पहले पतरस को बता दिया था कि मैं इस पत्थर पर, इस मकाशवा पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और जब मत्ती 28:19-20 में फरमाया है कि तुम बाप और बेटे रूह कुदस के नाम का बपतिस्मा लो, और इसके साथ ये वादा नहीं है कि तुम रूह कुदस के नाम में हो। जिस बात पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, इस बात के साथ ये वादा नहीं है कि तुम रूह कुदस के नाम में पाओगे। ये इस भेद को भी समझेंगे हम, और उन सब बातों पर अमल करना जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा। हालेलुया, हालेलुया। ये है मकाशवा। इस भेद को हमने समझना है, और फिर आगे बढ़ेंगे। मरकस 16:16 जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। आमीन। आमीन। जो ईमान लाए, बपतिस्मा ले, वो निजात पाएगा। जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराएगा। अब ये है खुदावंद यीशु मसीह ने दूसरे बपतिस्मे के ज़रिए, दूसरे लफ्ज़ में पहले किया है बाप और बेटे रूह कुदस के नाम का बपतिस्मा, और मरकस यहाँ बताता है कि जो ईमान लाए, बपतिस्मा ले, वो निजात पाएगा। तो वादा किसके साथ है? आसमान की बादशाही की कुंजियों का पतरस के साथ। अब आगे बढ़ेंगे। लूका की अंजील, उसका 24 बाब और 44 है। उसने लेकर उनके रूबरू खाया, उसने लेकर उनके रूबरू खाया। 44 फिर उसने उनसे ये कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था। तो ज़रूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों के सहीफों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हुई है पूरी हो। आगे 44 फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझें, और उनसे कहा, यूँ लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफ़ी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। आगे तुम इन बातों के गवाह हो, और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूँगा। लेकिन जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले, इस शहर में ठहरे रहो। आमीन। आमीन। अब जो वादा किया गया था कि जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। अब कुव्वत क्या है? पहले तो हम कुव्वत समझेंगे कि कुव्वत है कलाम को समझने के लिए। कलाम को समझने की कुव्वत पाओगे। जब तुम कुव्वत पाओगे, इस भेदों को समझने के लिए समझने की कुव्वत पाओगे, तब तुम जरूर मकाशवा को बयान कर सकोगे। हालेलुया, हालेलुया। उसने उनके जहन को खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझे, यानी कि उन भेदों को समझे जो किताब मुकद्दस में दर्ज है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो पक्की फरीसी और बाकी लीडर थे, वो भेदों को पढ़ते तो थे लेकिन समझते नहीं। जिसके इंतजार में थे वो सामने खड़ा है, उसको समझते नहीं थे क्योंकि उस भेद से वाक़िफ़ नहीं। फिर उसने उनके जहन खोले ताकि किताब मुकद्दस को समझे। हालेलुया, हालेलुया। जहन किनके खोले? रसूलों के जहन खोले हैं ताकि किताब मुकद्दस को समझे, उन बेतों को समझे जो मसीह के बारे में लिखे। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और आगे हम बढ़ेंगे। अमाल की किताब, उसका 8 बाब और उसकी 36, 37, 35 से शुरू है। फिलिप्पस ने अपनी जुबान खोलकर इस नमिष्ठा से शुरू किया और इसे यीशु की खुशखबरी दी। और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुँचे। फौजा ने कहा कि देख, पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज़ रोकती है? बस फिलिप्पस ने कहा कि अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब में कहा, मैं ईमान लाता हूँ कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अब अगर तू
ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। अगर तू ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। ये बात खून और गोश्त ने नहीं, बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है उसने तुझ पर ज़ाहिर की। उसने ज़ाहिर की। जब उसने ज़ाहिर की तो हाँ मैं जानता हूँ कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। अब इसको भी ये मुकाशवा मिल गया। हाँ मैं ईमान लाता हूँ कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। हालेलुया। हालेलुया। और जो इस भेद को समझ जाता है वो कहता है कि वाकई यीशु मसीह खुदा का बेटा है। हालेलुया। हालेलुया। और इस भेद को तो समझना है हमने, इसी भेद को तो समझना है। और बेटा असल में जिस्म को कहा। हालेलुया। रूह जो है वो खुदा है और जिस्म बेटा है। इस बेटे को और बाप को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलवहियत की सारी मेमोरी उसमें रहकर सुना है। बाप मुझ में है, मैं बाप में। हालेलुया। हालेलुया। कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है सिवाय बाप के, और कोई नहीं जानता कि बाप कौन है सिवाय बेटा के। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अमाल 2 बाब उसकी 38 है। अब जब इनको कुव्वत मिली, जो मुकाशवा इनको मिल गया, ईद पेंतीकोस्त वाले दिन वो जो चाबियां उसे मिल गई थी बादशाह की, इसने चाबियां पतरस ने अमाल 2 बाब की 38 आयत में शुरू की। वो चाबी लगाई और वो मुकाशवा खोला। हालेलुया। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। आमीन। आमीन। अब ये देखें, इस बात पर मैं आपकी तवज्जो दिलाई है मैंने, कि जब उन्हें पहले 32 में कहा गया कि बाप और बेटे रूह कुदस के नाम का बपतिस्मा दो देना, तो यहाँ की आगे बात नहीं लिखी कि रूह कुदस ही नाम में पाओगे। जब यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा आया तो फिर लिखा कि तुम रूह कुदस के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। ये वादा तुम्हारे साथ, तुम्हारी औलाद के साथ, उन सब दूर के लोगों के साथ जिनको खुदावंद हमारा खुदा बुलाता है। हालेलुया। हालेलुया। और कोई भी अगर किसी को बपतिस्मा दिया गया है बाइबल में, अगर किसी को पहले कोई और बपतिस्मा दिया गया है तो उन्हें दोबारा खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा दिया गया है। और बाइबल में सिर्फ अगर बपतिस्मा मिलेगा आपको जो रसूलों ने दिया है, वो यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा। इसके लिए हमारे पास बहुत से सबूत हैं जो बाइबल में आपको दिखाएंगे, और इस बात को अपनी ज़िंदगी में लेना है, क्योंकि बहुत सारे बहन भाई जब बपतिस्मा ले लेते हैं तो उन्हें पता भी नहीं होता, उन्हें पता भी नहीं होता कि पूछा जाए कि आपने क्या बपतिस्मा लिया है, तो वो कहते हैं हमें याद नहीं। लेकिन आज आपने याद रखना है। अगर कोई पूछे कि आपने कौन सा बपतिस्मा लिया है, तो आपने कहना वही जो ईद पेंतीकोस्त वाले दिन ऐलान हुआ। हालेलुया। वही हालेलुया। बपतिस्मा जो ईद पेंतीकोस्त वाले दिन जिसका ऐलान किया गया था, क्योंकि हम नबियों और रसूलों की नींव पर तमीर किए थे। हालेलुया। हालेलुया। हम उस रद्दे के ऊपर नहीं चढ़ेंगे जो बगैर सीमेंट के लगाया गया। हम वो रद्दा इस्तेमाल करेंगे, वो रद्दे पे चलते जाएंगे जो नबियों और रसूलों की नींव पर तमीर किया गया, और जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। ये है मसीही बपतिस्मा। इस बात को अपनी ज़िंदगी में लेना है। अगर कोई पूछे आपको तो आपने कहना है कि मैंने मसीही बपतिस्मा लिया है। मसीही बपतिस्मा वो है जो रेत और सीमत के साथ रद्दा लगाया गया है, नबियों और रसूलों के साथ। सिर्फ ईंटें नहीं लगी हुई, उनके साथ सीमत और रेत भी है, यानी नबियों और रसूल भी हैं, नबी और रसूल भी हैं। नबी और रसूलों की बात हुई है, रेत और सीमत के साथ वो पके हुए हैं, वो रद्दा चढ़ा है। हालेलुया। हालेलुया। इस बात को याद रखना ये आम बात नहीं है। जब आपकी ज़िंदगी में इस भेद को समझ आ जाएगी तो आप किसी को भी जब बपतिस्मा कोई आपसे पूछेगा तो आप कह सकेंगे कि हम तो नबियों और रसूलों की नींव पर तमीर किए थे, क्योंकि हम बगैर सीमत और रेत के नहीं हैं, हम तो नबियों और रसूलों की नींव पर तमीर किए थे। हमारे पास बहुत से सबूत हैं जो बाइबल में। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग ऐसे बपतिस्मा देते हैं, यानी बगैर सीमत और रेत के, ऐसे जो मिशन बपतिस्मा दे रही है, जो तंजीमें दे रही हैं, जो अपने आप को आगे पेश कर रही है, लेकिन हम इब्तदाई कलीसिया हैं, हम इब्तदाई कलीसिया हैं जो ईद पेंतीकोस्त वाले दिन वजूद में आई, और जिस नेज़े को इस पसली में, मसीह के पसली में लगाया गया, उस वक्त ये दुल्हन वजूद में है। ये वो दुल्हन है जो इब्तदाई कलीसिया है।
हालेलुया। हालेलुया। इस बात को याद रखना है, अगर आपको कोई पूछे तो आपने ये बताना है कि हमने वो बपतिस्मा लिया है जो ईदी पेंतीकोस्त वाले दिन, जिसके पास आसमान की बादशाही की कुंजियां हैं, वो है पतरस। उसने ऐलान किया था कि तुम में से हर कोई अपने गुनाह की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले। अब हम उन्हीं नबियों और रसूलों की नींव पर तमीम की। हालेलुया। हालेलुया। इस बात को अपनी ज़िंदगी में लेना है। और आगे मैं आपको बताता हूँ, आप कहेंगे कि आलमी रवा की कुंजियाँ तो खुदा यीशु मसीह के पास है। देखिए मुकाशवा पहला बाब बल्कि 17 से शुरू। जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब अलाबाद जिंदा रहूँगा, और मौत और आलमी अरवा की कुंजियाँ मेरे पास हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसने ये बात क्यों कही? पहले बात ये सोचने वाली बात है, क्योंकि यूहन्ना इस बात को जानता था। जिससे बात हो रही है ये यूहन्ना रसूल है। अब यूहन्ना रसूल पतरस के साथ था। जब वो पहाड़ पर उन्हें वो जलाल दिखाई दिया तो ये यूहन्ना, पतरस, याकूब उसके उस वक्त साथ ही थे। अब यूहन्ना जो है इस बात को जानता था कि आसमान की बादशाही की कुंजियाँ तो खुदावन ने पतरस के साथ वादा किया। हालेलुया। हालेलुया। ये बात बड़ी काबिल गौर है। इस बात को यूहन्ना बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि जो आलम बादशाही, आसमान की बादशाही की कुंजियाँ हैं, ये तो पतरस के साथ वादा किया गया है। और अब ये जो कुंजियाँ बता रहे हैं खुदावन, ये तो आलम अरवा की कुंजियाँ हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब मैं जिस बात पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, आसमान की बादशाही की कुंजियाँ और आलम अरवा की कुंजियों में फ़र्क है। आलम अरवा की कुंजियाँ और आसमान की बादशाही कुंजियों में फ़र्क है। आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए आपको पतरस के साथ रब्ता करना पड़ेगा, क्योंकि कुंजियाँ जिसके पास हैं, जो ताला ही ना खोले, आपको अंदर ही ना आने दे, जिसकी मर्जी है, जिसके पास चाबी हो, जब मर्जी ताला लगा सकता है, जब मर्जी खोल सकता है। आसमान की बादशाही की कुंजियाँ ऐसे शख्स को दी गई हैं जो कि खुदा ने जिसको अपना मुकाशवा दिया, वो है पतरस। हालेलुया। तू पतरस बार यूना है, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया दूँगा। अपनी कलीसिया, अगर खुदा यीशु मसीह की कलीसिया है तो वो पतरस पर है, क्योंकि पतरस का जिक्र खुदावन ने खुद वादा किया है कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इस बेत पर जो तुझे मिल गया है, क्योंकि ये बेत किसी इंसान से नहीं मिला, किसी तंजीम से नहीं मिला, किसी मिशन से नहीं मिला, बल्कि मेरे बाप से जो आसमान का। हालेलुया। हालेलुया। उसने तुझ पर जाहिर किया है, इसीलिए मैं बादशाह की कुंजियाँ तुझे दूंगा। और आगे बढ़ेंगे 8 बाब 16 अमाल। ये आपको इसलिए हवाले दे रहा हूँ, आपको याद हो कि अगर किसी जगह पे आपको बपतिस्मा दिया हुआ रसूलों का सबूत मिलेगा तो वो सिर्फ खुदा यीशु मसीह के नाम पे। किसी जगह पे बाइबल में बाप और बेटे रूह कुदस के नाम का बपतिस्मा नहीं दिया गया। अगर यूहन्ना का बपतिस्मा दिया गया है तो उसे बाद में खुदा यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा दिया गया। हालेलुया। और इस बेस से अबलीस मुझ पर बहुत तंग है। मैं आपको बताता हूँ, ये बेस से अबलीस मुझसे बहुत ज़्यादा तंग है। उसको पता कि ये बेत इसको भी पता चल गया, क्योंकि इसके खून और गोश्त में जो बेत इसको मिल गया है, ये तो बहुत बड़ा बेत है, इसकी नकल नहीं अबलीस कर सकता। और ये जो मुकाशवा है, इस मुकाशवा को समझने के लिए हमने बाइबल में से साबित किया। बाइबल में से देखेंगे तो हमें सबूत मिलेगा। आगे 8 बाब 16 कमाल। क्योंकि वो उस वक्त तक उनमें से किसी पर नाज़िल ना हुआ था, उन्होंने सिर्फ खुदा यीशु के नाम पर बपतिस्मा लिया था। आमीन। आमीन। अब जब खुदा यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया गया है तो आगे उनकी जब तैयारी है तो रसूलों ने अपने हाथ रखे, उन्हें रूह कुदस की नाम दी। हालेलुया। और ये इसका वादा है। आगे 10 बाब 48 है। ये आपको इसलिए सबूत दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि बाइबल में अगर किसी जगह पे बपतिस्मा दिया गया है
तो वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम का दिया। हालेलुया। हालेलुया। कोई एक हवाला भी साबित नहीं कर सकता बाइबल में किसी जगह पे बाप और बेटे रूह कुदस के नाम का बपतिस्मा दिया गया। हाँ, बहस के लिए तो वो बात कर सकते हैं, लेकिन सबूत के तौर पर ऐद नहीं दे सकते। हालेलुया। इस बात को याद रखें कि जो सबूत है वो है बाइबल के अलावा, क्योंकि मुझे खुदावंद ने डायरेक्ट ये बात की है कि जो कुछ इसमें लिखा है इस पर अमल करना, इसके अलावा किसी के नहीं। हालेलुया। यानी कि किसी मिशन की, किसी तंजीम की ना। 10:48 है। और उसने हुक्म दिया कि इन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। इस पर उन्होंने उससे दरख्वास्त की कि चंद रोज तुम्हारे पास रहे। आमीन। अब जब उन्होंने पहले बपतिस्मा लिया है, लेकिन बाद में उन्हें खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा दिया गया, उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे पास वो ठहर है, क्योंकि ये बेत हमें मिल गया है। ये बेत हमें मिल गया है। ये सामरी लोग थे, ये सामरी थे लोग, ये पुरजोश थे, लेकिन इन्होंने असल बपतिस्मा नहीं लिया। लेकिन जब उन्होंने उस बेत को जाना, तब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा। आगे 19:5 है। जहाँ कहीं किसी जगह पे भी कोई और बपतिस्मा दिया गया, उन्हें दोबारा खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा। कमाल 19:3 ऐसे शुरू। उन्होंने 3 से 5 उसने कहा, बस तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पर उसने कहा, यूहन्ना ने लोगों को यह कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर यानी यीशु पर ईमान लाना। उन्होंने ये सुनकर खुदावंद यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। आमीन। बाइबल में कहीं किसी जगह पे भी कोई और तरह का बपतिस्मा दिया गया है, तो दोबारा उन्हें खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा, क्योंकि ये है नबियों और रसूलों की नींव। ये है नबियों और रसूलों की नींव। अगर कोई इस पर ज़मीर है तो वो समझे कि रेत और सीमत के साथ गड्ढा उसका चढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, और वो गिरने की नहीं। लेकिन जो बगैर रेत और सीमत के हैं, वो किसी वक्त भी गिर सकती है, वो किसी वक्त भी गिर सकती है, क्योंकि जो घर चट्टान पर बना है उसे कुछ नुकसान नहीं, उसे कुछ नुकसान नहीं होगा। बंजाल है, सलाब है, कुछ नुकसान नहीं होगा। और जिसका घर रेत पर बना है, सिर्फ रेत पर, बीच में सीमन नहीं है, उस पर उसको नुकसान होगा, उसको नुकसान होगा। इसलिए तो वो खाली ईंट है, कभी भी गिर सकती है, उसके पास सबूत नहीं है। बहस तो है लेकिन सबूत नहीं है, और सबूत खुदा का कलाम। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का कलाम है, ये साबित करता है कि सिर्फ एक ही बपतिस्मा, एक ही ईमान है और एक ही खुदा। हालेलुया। हालेलुया। इफ्सियों का खत 4:7 है। और हम में से हर एक पर मसीह की बख्शिश के अंदाजा के मुआफिक फजल हुआ है। इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आने वाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। 4 से 7 है। एक ही बदन है और एक ही रूह, चुनाचा तुम्हें जो बुलाए गए थे उन बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा, और सब का खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। और हम में से हर एक पर मसीह की बख्शिश के अंदाजा के मुआफिक फजल हुआ है। आमीन। आमीन। यहाँ रसूल फरमाता है कि एक ही बपतिस्मा है, एक ही ईमान है और एक ही खुदा है। यहाँ रसूल बार बार इस बात को तस्दीक करता है कि एक ही बपतिस्मा है। आप 2-3 बपतिस्मे ना ले, एक ही बपतिस्मा है, जो मसीही बपतिस्मा है, वो है खुदावंद यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। वो है खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर। इस बात को अपनी ज़िंदगी में लें कि अगर आप आसमान की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं, अगर आप आसमान की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं, तो इस बात से नावाकिफ न रहें, क्योंकि आसमान की बादशाही की कुंजियाँ पतरस के साथ वादा की, किसी और के साथ नहीं किया गया। तो उसने वो चाबियाँ ईद पेंतीकोस्त वाले दिन इस्तेमाल की। उसने कहा कि तुम में से हर कोई अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा, गुनाहों की माफ़ी के लिए। अगर आपने किसी किस्म का बपतिस्मा लिया है,
तो आपको दोबारा गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। हालेलुया। और यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और 3 आयत से शुरू करेंगे, जरा पढ़ना सुंदर। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा न हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा न हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। हालेलुया। हालेलुया। आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए आपको खुदा यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा और रूह अल कुद्दस इनाम में जब मिल जाएगा तो फिर आप आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि पतरस ने यहाँ कहा है कि ये वादा तुम्हारे साथ, हमारी औलाद के साथ, उन सब दूर के लोगों के साथ जिनको खुदा ने बनाया। हालेलुया। हालेलुया। इस बात को अपनी ज़िंदगी में लेना है। अगर आसमान की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं तो पतरस के साथ रब्ता करना बहुत है, क्योंकि उसने फरमा दिया है कि ये वादा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी औलाद के साथ है और उन सब दूर के लोगों के साथ जिनको खुदा ने बनाया। और अब जब आपको कोई पूछे कि आपने कौन सा बपतिस्मा लिया है तो आपने क्या बताना है? जरा जिसने लेना वो बताइए। पहले अपना बहन शेयर आपने अगर बपतिस्मा लेना है तो आपने लोग आपसे पूछेंगे तो आपने क्या बताना है? मसीही बपतिस्मा, ठीक है। और हाँ जी, बहन भी ना, अगर आपको कोई पूछे कि आपने कौन सा बपतिस्मा लिया, हालेलुया, बहन के लिए तारीफ जाएगी। और ये है क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप बपतिस्मा लें किसी को बता सकें, ताकि बता सके आप और सबूत के साथ, जब वो कहेंगे ना कि वही बपतिस्मा जिसका ऐलान पतरस ने किया था वो हमने बपतिस्मा लिया, और यही मसीही बपतिस्मा है, क्योंकि रसूल अंताकिया में मसीही थे। हालेलुया। आगे बहन शायद पढ़ी, अगर आपको कोई पूछे कि आपने कौन सा बपतिस्मा लिया तो आपने क्या बताना? हालेलुया। आगे बहन शास्त्र, हालेलुया। अच्छा बहन रजिया, हाँ जी दिनेश, हाँ जी कामरा, हालेलुया। अनिल भाई, जिसका ऐलान ईद पेंटिकोस्ट वाले दिन यीशु मसीह का बपतिस्मा लेना। आमीन। ईद पाकिस्तान पेंटिकोस्ट का दान मसीह का बपतिस्मा ले गया। हाँ जी, अभी आपने जो आपको पूछे आपने ये बताना है कि हमने गुनाहों की माफ़ी के लिए खुदा यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है। वो बपतिस्मा जिसका ऐलान पतरस ने ईद पेंटिकोस्ट वाले दिन किया। हालेलुया। हालेलुया। ये सादे से अल्फाज हैं ताकि आप ना उलझे ना वो अगला उलझे। इसके बाद अगर कोई आपको कोई मुकाशवा दे, बात का लोगों को झूठे मुकाशवा मिल जाते हैं ना, झूठे मुकाशवा मिल जाते हैं कि रात को मैंने ख्वाब देखा है, मुझे खुदा ने कहा है कि इनको बाप और बेटे रूह कुद्दस के नाम का बपतिस्मा दो। वो झूठा नबी है और झूठा खासा, इसलिए तो वो मुकाशवा तो पतरस के पास है। हालेलुया। हालेलुया। ये बात खून और गोश्त में नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है उसने कहा। हालेलुया। हालेलुया। तुम झूठे खादमों से बचे रहे, मैं तुम्हें पहले जता देता हूं। कोई तुम्हें फरेब ना दे, कोई तुम्हें फरेब ना दे, इस बात को अपनी जिंदगी में। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, किसी भी बपतिस्मा लेना। अगर तुहानू कोई पूछे तो तुसी की लेना, की दसना? मसीही बपतिस्मा जिहड़ा ईद पेंटिकोस्त वाले दिन लाना है। उन झूठे लोगों से आपने बचना है, झूठे लोगों से बचना है। एक ही ईमान है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही खुदा है जो सबके दरमियान, सबके अंदर और सबके ऊपर। हालेलुया। हालेलुया। आए वहाँ प्रेस करो।